आपको कोई तो बोल दिया करो यार, बैठे रहते हो। सुष्मिता, सर आई थिंक कनेक्शन इज वेरी पुअर, आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है। आपको नहीं आ रही हो? मेरे तरफ से प्रॉब्लम है कि आपको? सर Sir, वॉइस इज voice is not ब्रेकिंग। clear. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? Sir, clear नहीं है. अच्छा, ओके 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 ओके, तो मैं दूसरे कनेक्शन से जोड़ता हूँ इसको। हेलो, अब ठीक है क्या? अब आ रही है साफ कुछ? सुनाई दे रहा है? यस सर, Yes, यस sir. सर, अभी ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, बीच में अगर बाई चांस प्रॉब्लम हुआ तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बीच में करते रहेंगे। और आई होप आपको नोट पैड दिख रहा है ना? यस सर, इट्स विजिबल। यू आर एबल टू सी इट। ठीक है, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट the orbitals, so atomic orbitals and molecular orbitals. So what we were discussing is we are having most of the time we are having this p orbital, and p orbital is of a dumbbell shape, and generally b represents the symmetry of the orbitals. Okay, so symmetry of the orbitals as a positive and negative signs, or also last time I discussed with you, or maybe as one of the, so one of the face as a dark colored face, dark color, and other face as light color. Okay, so this differentiation is only for the purpose of differentiating the symmetry of the lobes. जो दो lobes हैं उनकी जो symmetry है उसको differentiate करने के लिए we are doing this kind of nomenclature. ठीक है, positive and negative, and then positive and negative. ठीक है, and last time we also discussed that so we are having these p orbitals. So whenever there is a circulations, okay, or this distributions of positive and negative charge, okay, so these distributions, okay, so it leads to formation of a different new bonds. Okay, so there is reorganization of the pi electron cloud. ठीक है, आपके पास जो pi electron cloud है उसकी reorganization हो रही है. For example, in this case we are having butadiene. So butadiene की केस में, so there is, so this one is for this is reversible reaction. So we are having these kind of arrangements. ठीक है, so these bonds they reorient कि आपस में एक दूसरे की जगह मूव करेंगे. Okay, and then we are having some new bonds, new sigma bonds, and new pi bonds. Okay, and how these bonds are formed, so that we are going to discuss it in detail. So generally we are having these p atomic orbitals. Okay, so we are having p atomic orbitals, and just like, ठीक है, in molecular orbital theory, आपने molecular orbital theory में पढ़ा है आपने कि these two p atomic orbitals, so these are atomic orbitals, mind it. Okay, atomic orbital. Okay, so both of these are atomic orbitals. So these two orbitals they combine together. Okay,
and when they combine in a bonding way, so we are having a molecular orbital. So this is molecular orbital. When it is they are combining in a bonding way, and at the same time we are having anti-bonding molecular orbital. So bonding orbitals and anti-bonding molecular orbitals. So this one is anti-bonding molecular orbitals. So it results in the formation of a this is molecular orbital, and this one is a anti-bonding uh, uh, anti-bonding molecular orbitals. Okay, so molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals, and there is difference in energy. So like if we are having, so if this side, if it represents the increasing order of energy. Okay, so increasing order of energy, so that means when these two atomic orbitals they combine together, then in a bonding way, then they results in the formation of molecular orbitals, and this molecular orbital is comparatively lower in energy. Okay, this one is lower in energy, and this one is higher in energy. Okay, so lower in energy, and the anti-bonding molecular orbitals is always having higher energy as compared to the atomic orbitals. Okay, so this is how these orbitals they are interacting, and you can see importantly. So if you see it carefully, so we were having two atomic orbitals. So two atomic orbitals, and these two atomic orbitals. Okay, so so this one atomic orbital, and this one is second. So these two atomic orbitals they come together, combine to form a molecular orbitals, a bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. So we can say, so the total number of atomic orbitals. So atomic orbitals they are two. Then the molecular orbitals. So atomic orbitals is two, and molecular orbitals they are also two. Okay, so it's the same. The number of atomic and molecular orbitals they will be before and after the reactions, so they will remain same. So this is important. Okay, so these are when you are having only two p orbitals. Okay, so if you are having a pi bond, okay, so if pi bond is there, then pi bond is always formed between a bonding molecular orbital. Okay, so this is again a pi orbital, and we are having another pi orbital. Okay, so this one is another pi orbital. So these are the signs: positive and negative, positive and negative. Okay. So now, okay, so you can see there are in total 4 p orbitals. Okay, two p orbitals are here, and 2 p orbitals are here. Okay, so in total we can see see. So there are total 4 p orbitals. Sorry, so these are the p orbital. So this one is the bonding molecular orbital. So positive and negative. If this is bonding molecular orbital, and sorry, it will be anti-bonding molecular orbital. So this will be uh, positive and negative, and this one will be negative. Okay, I will draw it again. So this is bonding pi orbital, and this one is anti-bonding pi orbitals. So positive, negative, and negative, positive. Okay. So now here, so we are having
these orbitals, bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Okay. Now again we'll see in how many different ways these these pi orbitals they can combine together. Okay. So first of all, so it can interact in a bonding way. Okay. With itself, ये bonding way में interact करेगा. Okay. Then we can end with the, so we can have a orbital where it is interacting in a bonding way, positive positive and positive positive. Okay. So this bonding orbitals, so if we are having two bonding orbitals, okay, so this bonding orbital, so with these two bonding orbitals can interact in a bonding way. Okay. The second possibility here is it can interact in a anti-bonding way. Okay. So anti-bonding way, so that will be, so here you are having positive positive negative negative, and here it can give you negative negative and positive positive. Okay. So this bonding molecular orbital, it can interact in a anti-bonding way. So positive positive negative negative, and energetically it will be slightly lower in energy. ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे. Okay, so it will be somewhere here. So positive positive and negative. Okay. So these are the two arrangements, negative negative, and this one is positive and this one is positive. Okay. So in this case, what is happening? So we are having this is a bonding pi orbitals. So this bonding pi orbitals, it can interact only in two different ways. One is in the bonding way, where all the lobes they are having positive positive signs. ठीक है, सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल ऊपर आएंगे और नीचे आएंगे. ठीक है. और दूसरा ये हो जाएगा कि ये वाला ऑर्बिटल्स सेम ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा अपोजिट वे में, एंटी बॉन्डिंग वे में. ठीक है. तो उसमें ये पहले फर्स्ट टू आएंगे, दीज विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव. ठीक है. ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे नेगेटिव. ठीक है. और ये जो दूसरे इसको अप्रोच कर रहा है, दैट विल बी इन ए नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. सो दीज आर द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो एंटी बॉन्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, so it can also approach into two different ways. So one is positive negative and negative positive. Okay, so this is positive negative negative positive. Okay, and here negative positive and positive negative. Okay, so this orbital, it can this is p orbital and another anti-bonding orbital. Okay, so we are having this another anti-bonding orbital. So it can approach it in this way. कि ये क्या करेगा कि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इस ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा घूम के इस तरह से, and we will have this kind of arrangements. ठीक है. And second arrangement is, so this side will approach this side. ठीक है. तो उस केस में we will end up with another arrangements where these four orbitals. So this is positive, this one is negative, this one is positive, negative. Oh, sorry, this one is negative and this one is positive. Then positive, negative, and this one is negative, and this end is positive. Okay, मैं बाहर ड्रा कर रहा हूँ इसको, अंदर क्लियर नहीं दिख रहा है. Okay, so we are having in total 4 different orbitals.
ठीक है. So we call them these are psi1, psi2, psi3 and psi4. So these are the bonding and anti-bonding molecular orbitals. ठीक है. And here you can see, so all the lobes they're having same symmetry. ऊपर वाले सभी के पॉजिटिव है, नीचे वाले नेगेटिव है. ठीक है. And here if you see, ये फर्स्ट टू लोब पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. नेक्स्ट टू जो है ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव है. So यहाँ पे we are having this one possibility. ठीक है. Where the lobes, ठीक है, they are reverting the signs. ठीक है. वहां पे जो अपोजिट सिमेट्री के लोब्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपस में फेस कर रहे हैं एक दूसरे को. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है यहाँ पे. ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इस केस में अब so here we are having a node. Okay, we call it a node. Okay, so there will be a node here. Okay, and node is nodal plane. So it is same where the probability of finding the electron is minimum or zero. यहाँ पे minimum probability है, उसको हम nodal plane बोल रहे हैं. node है ये. तो यहाँ पे so these will be kind of anti-bonding kind of interactions. ठीक है. Secondly, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इस लोब का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. So we are having a node here, here too. ठीक है. तो एक नोड यहाँ पे आएगा. Okay, so we are having this node. ये नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पे नोड नहीं होगा और दूसरा नोड यहाँ पे आएगा. Okay, so we are having these two nodes here, two nodes. और ऊपर वाले में साई 4 में अगर जाएंगे हम तो हियर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके बीच में एक नोड आ गया. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दूसरा नोड यहाँ पे आ गया. ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये तीसरा नोड यहाँ पे आ गया. ठीक है. सो इन दिस केस वी आर हैविंग एंड इफ n इक्वल टू, सो साई 4 के केस में वी आर हैविंग 3 नोड, साई 3 के केस में वी आर हैविंग 2 नोड, और साई 2 के केस में वी आर हैविंग 1 नोड, और साई 1 के केस में इट इज 0 नोड. ठीक है. सो एज वी गो अप, द नंबर ऑफ नोड्स in the molecular orbitals that will keep on increasing. So like and these are always having integer value 0 1 2 3 4. Okay. So this is how the different pi molecular orbitals and atomic orbitals, so they interact with each other. And now this formation of nodes, okay, and the symmetry of the orbitals, so that really play a very important role. आगे जब हम FMO approach करेंगे, so FMO approach में in the FMO approach, so we will deal with the symmetry of the frontier molecular orbitals. So in that case, so we must know the signs of these जो frontier molecular orbitals हैं, उनका signs क्या है. ठीक है. उनकी जो symmetries है orbitals की, कि वो symmetries positive है कि negative है. ठीक है. वो हमें देखना है. that will really play very important role. ठीक है. तो ये इसलिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वी मस्ट नो, ये हमें आइडिया होना चाहिए इसका कि ये ऑर्बिटल्स हाउ दे आर हैविंग देयर सिमेट्रीज, वो डिफरेंट सिमेट्रीज कैसे दिखाएंगे वो. ठीक है. सो दैट्स व्हाई सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एंड फाइंड टू लर्न हाउ टू ड्रॉ दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स. जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनको हम अलग अलग ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, सो 2 ऑर्बिटल्स के केस में तो वी आर हैविंग ओनली दिस पॉसिबिलिटी. so this is bonding molecular orbitals and this one is anti bonding molecular orbital. So this one is positive, negative and negative, positive. This one is negative, positive, sorry, this is positive positive और ये positive negative आएगा ना, ये वाला, और ये आएगा negative positive and positive negative. ठीक है. तो ये anti bonding molecular orbitals बन गया. ठीक है. So इसी तरह से now we are having butadiene. So what will be the symmetry of butadiene? अगर आप butadiene की symmetry देखोगे, ठीक है, so we are having these orbitals. ठीक है. So this is butadiene. तो butadiene के केस में now if you want to draw the orbitals, तो इसके आप देखोगे ड्रॉ करोगे, so we are having these different
ऑर्बिटल. सो हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे आर पार्टिसिपेटिंग. अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे, सो इन दिस रिएक्शन, सो दीज आर p ऑर्बिटल्स, ये दोनों p ऑर्बिटल्स हैं. ये भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये दूसरे p ऑर्बिटल ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे. सो इन टोटल वी आर हैविंग 4 p एटॉमिक, सो 4 p atomic orbitals. Atomic orbital, they will participate in the reactions. Okay. So based on that, we will draw the these structures of these 4p. So 4p atomic orbitals, they will have 4 molecular orbitals. उनके 4 molecular orbitals होंगे, ठीक है. और उसमें से we have to see how many will be bonding molecular orbitals and how many will be anti-bonding molecular orbitals. ठीक है. तो जब आपके पास जब आपने ड्रॉ करने हैं ये, ठीक है, ये p atomic orbital ड्रॉ करने हैं. So for example for psi1 will be the lowest one, lowest atomic orbital. इसमें हमेशा ही जो सबसे lowest orbital आएगा, ठीक है. So उस केस में जो orbitals की सिमेट्री है, that will always, all the orbitals will be symmetric. सभी का ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है. ऊपर वाले लोब पॉजिटिव होगा और नीचे वाला लोब ये नेगेटिव रहेगा हमेशा इसका psi1 में, बिकॉज इट इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी. सो ठीक है, जो लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट हो सकती है इन विच ऑल द p ऑर्बिटल्स दे आर इंटरेक्टिंग विद इन ए बॉन्डिंग वे. आपस में बॉन्डिंग वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है. उसके बाद आप थोड़ा सा psi2 में जाओगे. सो psi2 के केस में जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वी आर हैविंग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है. वो आपस में पॉजिटिव है और नेक्स्ट 2 है उनका अपोजिट सिमेट्रीज है, ठीक है. सो वी कैन से देयर इज वन नोड, इसके बीच में एक नोड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो इन दिस केस, सो सिमेट्रिकली वी हैव टू डिवाइड इट सिमेट्रिकली. तो आप सिमेट्रिकली नोड प्लेस करोगे. जब आप नोड प्लेस करोगे देन द सिमेट्री ऑफ द लोब्स दैट विल बी रिवर्स. तो यहाँ से आप पॉजिटिव चल रहे हो, अगर यहाँ पे नोड आएगा तो इस केस में ये नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है. और उसी तरह से देन यू गो टू psi3, ठीक है. ये भी ड्रॉ करने का जो बेस्ट वे है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी 1 2 3 and 4. So these are 4 p atomic orbitals now. So as we have seen in previous cases, psi1 के केस में how many nodes we used to have? psi1 के केस में 0 नोड होता है. psi2 के केस में 1 नोड होता है. psi3 के केस में we are having 2 nodes, ठीक है. अब हमें 2 नोड सिमेट्रिकली प्लेस करने हैं. तो दो नोड्स को अगर हमने सिमेट्रिकली प्लेस करना है, ठीक है, हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ ये है, एक तो या तो यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं दोनों, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है. एक यहाँ पे, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल डिवाइडेड, ठीक है. सो द मोस्ट सिमेट्रिक वे ऑफ पुटिंग द नोड इज, एक नोड आप यहाँ पे रखो इन दो के बीच में. सो वन नोड विल बी हियर इट विल चेंज द साइन. सो वन नोड विल बी हियर एंड अनदर नोड विल बी हियर, ठीक है. सो वी आर हैविंग दिस नोड. और जब आप नोड रख दिया आपने तो इन दिस केस सो देयर विल बी चेंज इन साइन, ठीक है. ये पॉजिटिव नेगेटिव नोड अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है. सो दिस विल बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. So this one will be positive and negative. So we are having now in this case 2 nodes. Then the fourth, so because there are 4 p orbitals, so we will have 4 molecular orbitals, ठीक है. So in this case, so the fourth one, okay. और जो लास्ट ऑर्बिटल आता है आपका, उसमें हर एक p ऑर्बिटल के बीच में एक नोड होगा, ठीक है. So we are having nodes in between each. अगर हर एक के बीच में नोड आ रहा है, so it means यहाँ पे हर केस में ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव. दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव. एंड इन दिस केस द नंबर ऑफ नोड्स दैट विल बिकम्स 3, ठीक है. सो psi1 के केस में यू आर हैविंग,
सो दिस psi1, तो psi1 के केस में देयर इज नो नोड जीरो हर एक ऑर्बिटल की, और यहाँ पे आप इसको यू मे energetically भी, so this is in the increasing order of their energies. So because the most symmetric orbital that will be most stable, सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा, तो psi1 will be, इसमें सभी की सिमेट्री सेम रहेगी हमेशा, तो ये हमेशा मोस्ट स्टेबल होगा। उसी तरह से psi2 के केस में ये इस केस में वी आर हैविंग लेस सिमेट्री, ठीक है, एक नोड आ गया इसके बीच में। जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इट मींस कि सिमेट्री कम होती जा रही है उसके बीच में, ठीक है, और जो इंटरेक्शंस है, ठीक है, वो कम होती जा रही है। और इन दैट केस सो वी आर गेटिंग मोर एंड मोर हायर इन एनर्जी, जो उसकी जो एनर्जी है, सो एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप नोड्स इंक्रीज करते जाएंगे, इसकी एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्बिटल्स फॉर, सो दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो जो ब्यूटेडाइन सिस्टम है, ब्यूटेडाइन सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 पाई बॉन्ड मींस 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और जब आप बिकॉज यू आर हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो व्हेन यू विल फिल, जब आप ऑर्बिटल्स में, बिकॉज दीज आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, psi1 psi2, दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो psi1 psi2 psi3 एंड psi4, सो व्हेन यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स, so first 2 electron will go to the lowest, and इसमें above principle, Hund's rule of maximum multiplicity, ठीक है, और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सारे के सारे रूल्स अगेन एप्लीकेबल होंगे ऑर्बिटल्स पे, जितने भी रूल लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो फर्स्ट 2 electrons will go to the lowest orbital, next 2 electron will go to psi1, ठीक है। So we were having only 4 pi electrons, and 4 pi electrons they are occupied यहाँ पे, ये चारों के चारों आ गए इसमें, ठीक है। And then rest of the 2 orbitals they will be, so these will be, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, so we call them bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals है। और यहाँ पे ये खाली है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो these will be anti bonding molecular orbitals। so bonding molecular orbitals में इलेक्ट्रॉन होंगे और एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग molecular orbital आगे और नीचे वाले bonding molecular orbitals, ठीक है। And if you see we are having 2 bonding molecular orbitals, हमारे पास 2 bonding molecular orbitals है और 2 ही हमारे पास anti bonding molecular orbitals है। तो the number of bonding molecular orbitals and anti bonding molecular orbitals will always be same। So this is the characteristics of और symmetry rules है। आपका जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आएंगे उस केस में आप हमेशा देखोगे कि आपके पास ये सिमेट्री हमेशा बनी रहेगी। जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, आपके पास उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। जितने आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विल बी एम्प्टी, वो एम्प्टी रहेंगे। सो दिस इज ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बट व्हेन यू गो टू द 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जब आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे जाओगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इस केस में, सो द बेस्ट एग्जांपल इज हेक्साट्राईन। दिस इज हेक्साट्राईन, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। जब ये आगे सिस्टम जाएगा, नाउ हियर इफ यू सी, सो देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स, आपके पास 3 पाई बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इन टोटल अगर आप ऑर्बिटल्स देखोगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 1 आ गया, 2 3 4 5 एंड 6, so all the 6 carbon atoms, ठीक है, जो p orbital and 6 carbon atoms के, all these p orbitals they are participating, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। so whenever you will draw the atomic orbitals,
जब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अगर 6 आपके पी ऑर्बिटल्स है तो 6 ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इस रिएक्शन में, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन अगेन, सो वी विल ड्रॉ दिस। सो साई 1, सबसे पहले साई 1 लोएस्ट इन एनर्जी, तो ये हमेशा सेम रहेगा प्रिंसिपल। तो साई 1 जो लोएस्ट इन एनर्जी है, सो दैट विल बी हैविंग all the p orbitals, so 3 4 5 and 6, okay। So in this case all the lobes they are positive, जो ऊपर वाले लोब है वो पॉजिटिव है और ये नीचे वाले लोब ये सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस इज साई 1। साई 2, so now we are having 6 p orbitals, ठीक है, 6 के बीच में। अब हमें ये भी पता है कि जो नोड्स हैं, ठीक है, सो नोड्स भी ये बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे। तो सबसे पहले देयर विल बी नो नोड, नाउ देयर विल बी वन नोड। तो अगर एक नोड है तो एक नोड ये हमें सिमेट्रिकली रखना है, तो अगर सिमेट्री देखोगे आप तो देयर आर टोटल 6 p ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो हम अगर इसको बीच में रख देते हैं यहाँ पे, तो नोड विल बी हियर समवेयर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे नोड आ जाएगा, तो वी आर हैविंग दिस नोड। तो अब इस केस में ये नोड आ गया, तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो हियर ये विल चेंज, नोड के ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहाँ पे और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। देन वी कैन गो टू द साई 3, ठीक है। तो साई 3 के केस में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस केस में नाउ वी आर हैविंग 2 नोड्स, आपको 2 नोड्स रखने। तो यहाँ पे भी अगर आप सिमेट्रिकली देखोगे, कोई बता सकता है कहाँ पे आएंगे नोड्स? एनी ऑफ यू, अगर सिमेट्रिकली 2 नोड्स को प्लेस करना है? आर यू गेटिंग मी? को समझ आ रहा है कुछ की नहीं? राजेश, After 2 nodes. सर 2-2 के गैप में आएंगे सर। सर 2-2 के गैप में आएगा सर। तो 2-2 के गैप में आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्री बना रहा है। तो पहले 2 लोब्स हो गए, तो ये 2 लोब्स आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। सो ये आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जब ये लोब्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे साइन चेंज होगा, फिर प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस प्लस नेगेटिव एंड प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर आप ड्रॉ करोगे जाके, दिस विल बी साई 4, साई 4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपने ये ऑर्बिटल्स अगर आपको क्लियर हो गया और आपको ड्रॉ करने आ गई है, ठीक है, तो इस केस में देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। तो आपको बाद में इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे और साथ में जब हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और डिफरेंट अप्रोचेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उस केस में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री है, ठीक है, वो क्या आ रही है, ठीक है। तो कौन रोटेशन देनी है या डिसरोटेशन देनी है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा आगे। फिर हम करते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं कौन रोटेशन और डिसरोटेशन, ठीक है। लेकिन ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हो इसमें। नाउ इन दिस केस नाउ यू नो वी नीड 3 नोड्स, ठीक है। 3 नोड्स आएंगे यहाँ पे, सो 3 नोड्स इस केस में। सो दिस इज नाउ दीज नोड्स दे अगेन नीड टू बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो 3 नोड्स कैसे रखेंगे हम लोग, ठीक है, दैट अगेन वी हैव टू सी। तो इसका भी अगर हम सिमेट्रिकली रखना है इसको, तो एक नोड यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर 2, फिर इसके बीच में आएगा, फिर 2 और फिर इसके बीच में आएगा,
दोनों. सो दिस इज द सिमेट्रिक वे ऑफ प्लेसिंग. ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए नोड्स का. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये फर्स्ट दो के बीच में ये, क्योंकि अगर आप आगे रखोगे एक दो और इकट्ठे इकट्ठे रख दोगे तीनों के तीनों, दैट विल नॉट बी सिमेट्रिक. वो नोड्स को हम सिमेट्रिक नहीं मानेंगे उसको. ठीक है, तो ये प्रॉपर बराबर गैप के बीच में रहने चाहिए. सो दिस वन विल बी पॉजिटिव नेगेटिव, देन दिस वन इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नोड के बाद साइन चेंज होगा. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज साई 4. सिमिलरली नाउ गो टू साई 5. साई 5 के केस में 1 2 3 4 5 6. So in this case we are having 4 nodes. 4 nodes है, so these can be symmetrically placed only 1 2, बीच में गैप रखा 1 और 2. ठीक है, so this is the symmetric way of placing them. Then again sign with this up, so plus negative, so this one is negative, plus plus negative, plus negative negative, and positive positive and negative. ठीक है, और ये आगे 4 nodes. Then with psi 6, so psi 6 is the last p orbital, last molecular orbitals. ये आएगा, so 1 2 3 4 5 and 6. ठीक है, तो इस केस में so और जो लास्ट रहता है आपका, उसमें हर एक ऑर्बिटल के बीच में नोड आता है. ठीक है, हर एक ऑर्बिटल के बीच में नोड. तो इसमें दो नोड, दो तो आपके सीधे बन जाते हैं. एक जो फर्स्ट है, फर्स्ट में कोई भी नोड नहीं होगा, सभी के सेम साइन आएंगे, और लास्ट वाले में नेगेटिव पॉजिटिव. तो दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, लास्ट बारे में हर एक के बीच में नोड आएगा, और हर एक ऑर्बिटल्स का अपोजिट साइन होगा, अपोजिट फेस करेंगे वो. ठीक है, नाउ दिस इज ए 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट मींस देयर आर ओनली 6 pi इलेक्ट्रॉन्स. 6 pi इलेक्ट्रॉन है, so we can see how these electrons they are placed. So here the first 2 electron will go to the psi 1, next 2 electron to psi 2, then next 2 electron to psi 3. Okay, so psi 1 psi 2 and psi 3. So we are having these electrons distributed. Then ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल्स आ गए इसमें, और बाकी psi 4 psi 5 and 6, so they will be empty orbitals. ठीक है, so it means these 3 will be bonding molecular orbitals, and these 3 will be anti-bonding molecular orbitals. So bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. So these are the in these arrangements we can have these orbitals. Okay, so again you can see the number of bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbital is again same. यहाँ पे भी आपके पास 3 bonding molecular orbitals है और 3 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं. इसी में ठीक है, इन ऑर्बिटल्स में the other important feature what we notice is the symmetry elements. उसमें हम symmetry elements भी देखते हैं. ठीक है, अब symmetry elements हमने symmetry elements ठीक है स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में किए हैं. symmetry elements कौन कौन से होते हैं, बताएगा कोई? कौन बताएगा सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? शर्मिष्ठा आप बताओगे? शर्मिष्ठा यस सर. कौन कौन से होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स? सर इन दिस कंपाउंड. तो उस कंपाउंड को छोड़ो, वैसे कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? 5 symmetry elements.
Plane of symmetry, axis of symmetry, then inversion center, improper axis of symmetry, and identity. ये फिर से बोलो, आवाज कट रही है आपकी। Axis of symmetry, plane of Axis- symmetry, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया, बहुत बढ़िया। और उसमें हम ओके, सो दिस वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। और sir, plane of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत बढ़िया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और center of inversion, सेंटर ऑफ, ठीक है, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं या सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोल देते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और improper axis of symmetry, फोर्थ इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इम्प्रॉपर तो फिर वो दोनों हो गए ना, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, आ गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको यू नो किस एंगल से वो CN, सो दैट एंड दैट CN, तो दैट विल बी डिनोटेड बाय 360 बाय थीटा, ठीक है। तो किस एंगल से रोटेट करें वो सिग्निफाइज करता है। तो हमारे पास C2 आएगा, C3, C4, C5, C6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस केस में सो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री आप जब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में देखेंगे हम लोग, सिर्फ जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखेंगे, वी गॉट इंटरेस्टेड ओनली इन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है? और कोई? What is Akanksha Maurya? What is C2 axis of symmetry? Akanksha Maurya. C2 axis of symmetry क्या है? Yes, sir. जोर से बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है। Imaginary plane within the imaginary plane within the molecule which bisects the molecule between into two halves. वाओ, ये गूगल से पढ़ रही हो डेफिनेशन? Sir, it bisects the molecule किसकी into two है? halves. नहीं, मैं वैसे बताओ, C2 एक्सिस क्या होती है? ये मुझे गूगल से पढ़ के मत दो डेफिनेशन सुनाओ। मैंने कहा गूगल से डेफिनेशन पढ़ के मत सुनाओ, मुझे वैसे बताओ कि क्या होती है C2 Sir, एक्सिस, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे आती है वो? C2 yes sir. वो Sir, वो C2 तो axis आपने of गूगल में symmetry मतलब टाइप जो करके मुझे बता कोई भी दिया, वो molecule like doesn't make H2O, sense। sir, like H2O उसको हम हाफ में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब हाँ हाँ, H2O को हाफ में डिवाइड करते हैं। और कोई C2 एक्सिस? और बोले कोई? सर एन इमेजिनरी एक्सिस, दीपांकर? अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट Yes, करें sir. तो एग्जैक्टली, इट्स व्हाट आई वांट Sir, टू हियर। 180 तो degree अगर- rotation. हाँ, C2 मींस C2 कब आएगा? 360 बाई, बट 180 करना पड़ेगा तब जाके 62। तो जब हम 180 डिग्री से रोटेशन देते हैं, तो 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद अगर वो सेम अरेंजमेंट में आ जाता है, ये लेट अस सपोज ये प्लेन है या हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको अगर हमने 180 का रोटेशन दिया, पूरा 180 का रोटेशन हो गया, और अगेन अगर हमारे पास वो रिपीट जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है ये, ठीक है, तो इट मींस कि हमारे पास सेम रिपीट हो रहा है, तो वो सेम वैसे आ जाएगा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, तो उसको बोलते हैं कि दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू हैव this center of this C2 axis of symmetry। तो वो C2 axis of symmetry आएगा, ठीक है। सो दैट इज C2 axis of symmetry, और हम C2 axis of symmetry देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल यू सी? C2 axis of symmetry जो देखेंगे वो हम देखेंगे परपेंडिकुलर, ये आपने ध्यान रखना है। तो दिस C2 axis of symmetry
तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर रहेगी, वो प्लेन में नहीं रहेगी, नॉट इन द प्लेन, ठीक है। सो इट विल बी परपेंडिकुलर नॉट इन द प्लेन, जो हमने देखनी है, ठीक है। सेकंड वी विल सी द मिरर प्लेन सिमेट्री डिनोटेड बाय सिग्मा। तो मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करेंगे मॉलिक्यूल में कि whether the molecules they are having mirror plane symmetry or not, ठीक है। सो मिरर प्लेन सिमेट्री क्या आएगी कि हम मॉलिक्यूल को इस तरह से, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ, ठीक है, या हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन है जो हम मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में सेंटर में रख दें और उस मॉलिक्यूल को मिरर में देखें, तो व्हाट इट विल सी, सो the first half will be exactly the mirror image of the second half, okay. So in that case we will call it it is having a C2 axis of symmetry or mirror plane axis of symmetry. So चलो इसमें जाते हैं फिर यहाँ पे, ठीक है, ये आगे। तो ये हमारे पास जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो दिस इज ए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स में so we are having, first of all let us check the C2 symmetry। हम C2 symmetry चेक करते हैं सभी हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। सो हियर we are having okay, सबसे पहले हम यहीं पे आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम सबसे आसान वाला करते हैं पहले। सो वी आर हैविंग ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंड दिस वन इज एंटी bonding molecular orbital. So this one is positive, positive, negative, negative. This one is positive, negative and negative, positive, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी C2 सिमेट्री देखते हैं। So now tell me, is it having a C2 axis of symmetry जो psi1 है? इस psi1 है, let us suppose that this one is psi2। तो क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कोई है क्या, बोलेगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें तो आपको कि हम यहाँ पे रखने वर्टिकल, ये बोर्ड है, हम बोर्ड के ऊपर रख रहे हैं परपेंडिकुलर, जैसे ये क्लास बोर्ड है तो ये दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नॉट दिस वन। दिस इनले रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को 20 पे को 180 से रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, नॉट लाइक दिस वन, फ्लिपिंग होगी, इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन घूम रहा है, ये तो मॉलिक्यूल उसी प्लेन में घूमेगा, आपने इस तरह से घुमाना है उसी प्लेन में। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, लेट अस सपोज कि तो ये आपका, ये आपने यहाँ से आपने 180 का रोटेशन दे दिया, तो 180 डिग्री का रोटेशन दिया। सो व्हाट विल हैपन, तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। तो ये नेगेटिव नेगेटिव ऊपर आ गया और पॉजिटिव पॉजिटिव ये नीचे चला गया, ठीक है। तो जब आप 180 का रोटेशन दोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, जो पॉजिटिव साइंस है वो नीचे आ जाएंगे और नेगेटिव साइंस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। सो वी आर हैविंग, so in this case do we have C2 axis of symmetry? आपकी आवाज नहीं आ रही है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक्टिव रहो थोड़े से, नींद आ रही है क्या? जवाब तो दो। अनम्यूट करके बता दिया करो क्योंकि इधर पता नहीं चल रहा है मैसेज का। सो दीपांकर, यस सर। है इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? नो सर। नहीं है, ठीक है, वो नहीं है क्योंकि C2 तब होती है अगर वो ऊपर एग्जैक्टली ऊपर पॉजिटिव रहता और नीचे नेगेटिव रहता। यस सर। इट्स नॉट हैविंग C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो इट मींस, सो वी विल से C2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमने, तो psi1 में
तो इट इज असिमेट्रिक, तो C2 इज असिमेट्रिक, ये असिमेट्रिक आएगा ये, ठीक है। देन इन दिस केस साई टू के केस में क्या होगा, इसको भी अगर हम 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे 180 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो ये जब रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, और ये वाला रोटेट करके इस पोजीशन नीचे वाली पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो देन वी विल अगेन एंड अप विद द दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव अरेंजमेंट्स, हमारे पास फिर से यही अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। सो वी विल हैव दिस अरेंजमेंट टू, सो इन दिस केस now is it having C2 axis of symmetry? याशु सर है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Side 2 has. So this one is having, side 2 is having axis, so this one is symmetric with respect to C2. तो ये again this is again very important. तो ये आप आगे हम जब निकालने हमने सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने और उसमें कंपेयर करना है हमने, ठीक है, या कोरिलेशन डायग्राम बनानी है, ठीक है, या एफएमओ में देखेंगे हम लोग कि वेदर जो रिएक्टेंट की सिमेट्री है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, कि रिएक्टेंट में भी C2 है, प्रोडक्ट में भी C2 जानी चाहिए, रिएक्टेंट में मिरर प्लेन सिमेट्री है, प्रोडक्ट्स में भी मिरर प्लेन सिमेट्री ट्रांसफर होनी चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। आप में से कोई जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, जिसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, आस्क मी। सर आपने रोटेट कैसे किया सर, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि आप कैसे कैसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे ये वाला साइन आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे यहाँ पे एक दूसरा है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइन लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हम रोटेट कर रहे हैं वो हम प्लेन, हमारी एक्सिस ये आ रही है परपेंडिकुलर, जैसे आपकी तरफ है ये, तो एक्सिस इज दिस वन, तो एक्सिस ये इस तरह से आएगी, और इसको हम 180 से रोटेट करेंगे। तो जब हम 180 से रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ वाला है, देखो ये अगर ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं, तो एक ये आ गया, ठीक है, ये जैसे नोब है इसकी, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों लेट अस सपोज एक जैसे हैं ये, तो ये पॉजिटिव है, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये जब हम रोटेट करेंगे इसको, आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये हम 180 से रोटेट कर रहे हैं, तो ये इसकी जगह चला जाएगा, जो ये पॉजिटिव था इसकी जगह यहाँ चला गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो पॉजिटिव था वो इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ पे इस पॉजिटिव के पास, और ये ऊपर नेगेटिव है वो यहाँ पे चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो ये आ रहा है ये, ठीक है, ये वाला, नॉट इन दिस वे, ऐसे नहीं फ्लिप नहीं करोगे आप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं घुमाओगे आप, ठीक है। एक C2 ये भी है, इसके ऊपर भी है C2, ठीक है, बट वी विल ओनली कंसीडर द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2, जो परपेंडिकुलर है, सिर्फ हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये ऐसे घुमाना है इसको, ठीक है, ना कि ऐसे, अगर ऐसे घुमाओगे आप तो फिर गलत आएगा आपका रिजल्ट, ये तब तो ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। और किसी को नहीं पता चल रहा हो? ये समझ लो, बाकी आगे वाला आपको लग जाएगा पता। अगर ये समझ नहीं आया, आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको कि कैसे C2 निकाल रहे हैं हम लोग, कि C2 में सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी हम मिरर प्लेन पे भी बात करेंगे, मिरर प्लेन थोड़ा आसान है तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो C2 में है रोटेट करने का, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, फिर भी नहीं पता चल रहा है, सो जस्ट आस्क मी कि ये देखो
तो जैसे ये यहाँ पे हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जब रोटेट होगा, इसको परपेंडिकुलर रोटेट करेंगे तो ये रोटेट होके ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव है वो यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव है वो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो अरेंजमेंट बन रही है हमारे पास, ये इस तरह से वो रोटेट करके, इस तरह से रोटेट करके बन रही है। एंड हियर वी कैन सी, वी कैन कंपेयर दिस टू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जो हम एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में भी जब रोटेट करेंगे इसको तो ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे ये शुरू में था, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आ जा रहा है वैसे। तो इट मींस द सिमेट्री इज रिटेन्ड, इट इज हैविंग ए C2 सिमेट्री। ठीक है, C2 सिमेट्री तो क्लियर हो गया। नाउ द सेकंड वन इज मिरर प्लेन सिमेट्री। तो मिरर प्लेन सिमेट्री में ये आसान है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके पास ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया। ये आपको सिर्फ मॉलिक्यूल के सेंटर में, सेंटर से आप एक प्लेन पास करोगे यहाँ पे। ठीक है, और देखोगे कि इज द फर्स्ट हाफ मिरर इमेज ऑफ द सेकंड हाफ, क्या ये मिरर इमेज है कि नहीं है? एनीबॉडी? मिरर प्लेन सिमेट्री, ये मिरर इमेज है एक दूसरे की? यस सर। बोलो, इतने इतने मरियल से मत बैठो, थोड़ी एनर्जी के साथ बोलो। ये थोड़ा ठीक है। ये तो ऐसा लगता है कि मैं अकेला सिर्फ कंप्यूटर के साथ बात कर रहा हूँ, तो समझ नहीं पाता हूँ। तो ये आपका, तो यहाँ पे मिरर प्लेन सिमेट्री है। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको कि थोड़ा आसान है ये आपको कुछ रोटेट नहीं करना, सिर्फ देखना है। सो आई विल से दिस वन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। व्हाट अबाउट दिस वन? इज इट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक? इसमें है मिरर प्लेन सिमेट्री? खुशी? नो सर। नो सर। ठीक है, सो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें नहीं है। सो नाउ, ठीक है, ये तो सिंपल सिस्टम है। सो नाउ कम्स टू द साइवन। साइवन में आ जाओ आप, अगर हमने कंपेयर करना है तो लेट अस कंपेयर इट। तो यहाँ पर सबसे पहले C2 सिमेट्री देख लेते हैं। सो व्हाट अबाउट साइवन? इसमें C2 सिमेट्री है कि नहीं? कौन आएगा आगे? नो सर। No, sir. नो सर। सो दिस वन इज एंटी सिमेट्रिक। वेल डन। Psi2? में है। साइटो में सिमेट्रिक है। या इट इज हैविंग सिमेट्री। ठीक है, Psi2 में सिमेट्री आ रही है। Psi3? सर एसिमेट्रिक। So this one is asymmetric. Psi4? Psi4 इज सिमेट्रिक। Asymmetric. ठीक है, well done. ठीक है, तो आपको आ गया समझ। तो दिस वन इज asymmetric, symmetric, asymmetric एंड symmetric। तो यहाँ पे भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप इस पे यहाँ बीच में परपेंडिकुलर रखोगे, ठीक है, और इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा कि जो सारे के सारे नेगेटिव लोब्स ऊपर चले जाएंगे। 180 से रोटेट करोगे तो नेगेटिव लोब ऊपर चले जाएंगे, पॉजिटिव नीचे आ जाएंगे। इट मींस इट विल बी asymmetric। यहाँ पे इसको अगर आप रोटेट करोगे तो इसमें सेम ये वाला जो लोब है ये जाके यहाँ नीचे पहुंच जाएगा, और ये जो नीचे वाला है 180 से रोटेट करके ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसकी जगह ले लेगा, और ये वाला इसकी जगह ले लेगा एग्जैक्टली। ठीक है, सो इन दिस केस we'll call it this will be symmetric। so ये सिमेट्री रहेगा। उसी तरह से Psi3 will be asymmetric and Psi4 will be symmetric। ठीक है, ये आ गया। then what about the mirror plane symmetry? so mirror plane में सर Psi1 में सिमेट्रिक है, Psi2 में एसिमेट्रिक। yeah, Psi1 is symmetric, Psi2 is एसिमेट्रिक।
तो दिस वन इज असिमेट्रिक, क्योंकि जब आप यहाँ से प्लेन रखोगे, वो रिवर्स हो जाएगा सारा। हाँ यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ इसके सामने नेगेटिव आ रहा है, और ये दूसरा पॉजिटिव है, इसके सामने नेगेटिव आ रहा है, तो ये असिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, साई 3 में सिमेट्रिक आएगा सर। तो दिस विल बी सिमेट्रिक। साई 4 देन अगेन सिमेट्रिक, अगेन एसिमेट्रिक। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो ट्रेंड आ रहा है जनरली आपको। ठीक है, तो ये लिंक बना रहेगा। ठीक है, बहुत कम केसेस में होगा जो आपको ये लिंक नहीं मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, ये रहेगा। तो इस केस में जैसे ये फर्स्ट वाला असिमेट्रिक आया, तो जनरली जो अल्टरनेट आएगा दूसरा आएगा। ठीक है, तो दैट विल बी सिमेट्रिक। तो इसमें अगर आपको एक की पता है असिमेट्रिक, तो ये असिमेट्रिक आया, इसमें सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये अल्टरनेटिवली आएंगे। तो ये C2 में और ये मिरर प्लेन में, ये सिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक है, ये अगेन दिस वन इज सिमेट्रिक, दिस वन इज असिमेट्रिक। ठीक है, और आपस में भी ये जहाँ पे ये सिमेट्री है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल C2 में असिमेट्रिक है वो हमेशा ही मिरर प्लेन में असिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, मैंने बोल दिया कि हम देखेंगे आगे जाके, जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे, जब कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे हम लोग और ड्रॉ करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, जब हम सिमेट्री एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे, सो इन दैट केस यू विल सी समटाइम a single molecule can have both C2 and mirror plane as symmetric as well as asymmetric। वो asymmetric भी हो सकता है और asymmetric भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सिनेरियो आएगा आपके पास, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, एक आ रहा है, एक के बाद आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, सिमेट्रिक asymmetric, सिमेट्रिक asymmetric। ठीक है, सिमिलरली वी कैन मूव ऑन टू, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप थोड़ा सा बड़े सिस्टम में चले जाते हैं। ये हमारे पास we are having this is 6 pi electron system। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। दूसरा आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर, तो एक और आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा। सो दिस वन इज लेट अस गो C2 एंड दिस वन इज मिरर प्लेन सिमेट्री। तो यहाँ पे जो साई 1 है, साई 1 में क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव लोब्स हैं ऊपर वाले, तो ये हमेशा ही असिमेट्रिक आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन, असिमेट्रिक आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू C2 असिमेट्रिक आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन सिमेट्रिक आएगा हमेशा ही, जो साई 1 है। ठीक है, जो मर्जी ऑर्बिटल लो, 4 पाई ऑर्बिटल ले लो आप, 6 पाई ले लो, 8 पाई ले लो, जो भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये पैटर्न हमेशा ऑब्जर्व करोगे आप लोग। ठीक है, सो दिस पैटर्न विल बी रिपीटेड। तो ये आ गया सिमेट्रिक। तो ये आप वैसे तो यहाँ पे ये आप बोल सकते हो सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये पैटर्न ऐसे रहेगा। ठीक है, अल्टरनेटिवली फॉलो करेगा, ये ऐसे चलेगा ये। सो ये असिमेट्रिक है। देन साई 2 विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2। सिमिलरली द मिरर प्लेन सिमेट्री, जो साई 1 है ये सिमेट्रिक आ रहा है, तो साई 2 असिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक आएगा, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ठीक है, तो ये आगे इसके सिमेट्री एलिमेंट्स ये वाले। ठीक है, सो सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक। ठीक है, सो वी आर हैविंग these different symmetry elements associated with this one। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, any of you if you having any question। ये क्लियर हो गया सभी को? Excuse me, Yes, sir. Sir, हाँ बोलिए। sir, why we are only considering perpendicular C2? सॉरी, Why we are only considering perpendicular C2 for finding symmetry? okay, because you know we are comparing the symmetry elements। ठीक है, and we are seeing the symmetry of the orbitals with respect to each other। तो जब आपने रोटेशन देनी है उन ऑर्बिटल्स को, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर आप जैसे ये जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल एक प्लेन में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेन में है ये, और उसकी डम्बेल शेप है, p ऑर्बिटल इज हैविंग ए डम्बेल शेप। ठीक है, तो जब आप उसको रोटेशन दोगे ना, तो रोटेशन आप ऐसे नहीं दे उसको, ऐसे नहीं कर सकते कि अगर आपने होल्ड उसको ऐसे किया हुआ है, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल ये है। ठीक है, तो अगर आपने इनकी बॉन्डिंग करनी है या एंटी बॉन्डिंग करनी है, अब हम सीज रोटेशन करेंगे आपको, तो
तो एक पर्टिकुलर प्लेन में करोगे आप, इस प्लेन में आप इनकी जो रोटेशन करोगे इस प्लेन में, और ये वाली रोटेशन कब पॉसिबल है, when you are doing it from the with the help of perpendicular plane, ये परपेंडिकुलर प्लेन से करोगे, ठीक है। रोटेशन तो पॉसिबल है, रोटेशन तो आप C2 तो यहां से भी पॉसिबल है अगर आपने थियोरेटिकली देखना है ये, लेकिन इस केस में अगर आप ये वाली रोटेशन करते हो ऑर्बिटल्स को, then the orbitals will never they will never approach each other, वो आपस में एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे। ये वाली या उसको घुमाते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल घूमेंगे, ये पैरेलल आएगा ये, ठीक है। तो उस सिमेट्री, क्योंकि वो हमने वो सिमेट्री देखनी है, उस सिमेट्री को देखने के लिए we always have or we always view it through the perpendicular axis of symmetry, उस perpendicular axis से, so that we can have those bonding interactions and anti bonding interactions, we can observe them। और अगर हम उनको आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं लाएंगे, अगर हम उनको पैरेलल घुमाते रहेंगे, तो in that case we will not be able to see it। या और किसी का क्वेश्चन हो? मतलब सर इसको प्लेन ऑफ पेपर में ही रोटेट करना है, उसको बाहर नहीं लेके जाना इसको। एग्जैक्टली, आप उसको परपेंडिकुलर फ्लिप नहीं करोगे, क्योंकि फ्लिप करोगे तब तो आपके पास वो सारे के सारे फिर से आ जाएगा, चाहे वो C2 भी दिखा देगा, वो भी दिखा देगा, लेकिन दैट विल नॉट सर्व योर पर्पस। आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन आ नहीं सकती उससे, उस सिमेट्री से। उस सिमेट्री को तो ऐसा आप कहीं पे भी घुमा सकते हो, लेकिन आपके काम की जो रोटेशन है, आप जब बॉन्ड फॉर्म करोगे, देखो जैसे ये 2 ऑर्बिटल है, तो 2 ऑर्बिटल को आप ऐसे घुमा रहे हो, इसको ये रोटेशन दे दिया आपने, इसको ऐसे घुमा दिया। आपका पर्पस क्या है कि आपने इन 2 ऑर्बिटल्स को क्लोज लाना है आपस में, इन 2 लोब्स को, सिमेट्री वाले लोब्स, ये तो ये जो क्लोज आएंगे वो इस रोटेशन से आएंगे, इस रोटेशन से क्लोज नहीं आएंगे वो, ये वाली जो रोटेशन है, तो देने को तो दे दो रोटेशन, लेकिन इसमें कोई इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। तो ये सिर्फ इसी प्लेन में हो सकती है, ये वाली बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर ऑब्जर्विंग इट द परपेंडिकुलर एक्सिस। और ये रोटेशन तब आएगी जब हम यहाँ से घुमाएंगे, ये एक्सिस हमारे पास, जब हम इसके परपेंडिकुलर घुमाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, या इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये ऐसे घूमेगा चारों तरफ। या और कोई? Hello, sir. तो या Sir, I know that 1,3-butadiene case and hexatriene case. Why you are not considering the bisecting plane in the case of ethene molecule? That Bisecting means sigma plane? H. Sigma H. I am talking about sigma H. नहीं, I didn't get your question. What do you really want to ask? Sir, Sankalan. please show me the previous slide. Yeah, this one. No, sir. Yes. In this case, Or this one. I'm not talking about the 1,3-butadiene system. I'm talking about the ethene system. Sir, next slide. Okay, let us draw it. Yeah, even the ethene system. So yeah, this is the ethene system. Yeah. Okay, why you are not considering the sigma H plane in this case? Which one? Which plane you are talking about? So here we are saying that these because when we are planning it, so we are just showing the side wise. This is a pi formation of pi bond. This is a pi bond. ठीक है, जब pi bond बनेगा that will always with the side wise overlapping. ठीक है, और जब ये sigma bond बनेगा, when we are having a sigma bond, सर आप इसको एक पेपर के ऊपर रख दीजिए और उसको सिर्फ बाइसेक्टिंग प्लेन डालिए, मतलब सिग्मा एच जिसे बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव हो या कोई भी साइन हो हमेशा कट जाएगा। ये वाला ऑर्बिटल लोग, ये वाला बोल रहे हो आपकी, ये वाली एक्सिस मैं सर इसकी जो बीएमओ एंड एबीएमओ जो आपने दिया है ना, बीएमओ में 2 बॉन्डिंग हो रहा है, वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, तो दोनों ही क्यों नहीं सिमेट्रिक होंगे? आप एक को सिमेट्रिक बोल रहे, एक को एंटी सिमेट्रिक बोल रहे, तो आप यहाँ पे तो हमेशा सिग्मा एच प्लेन आई थिंक रहेगा। अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, ठीक है,
तो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्सिस, आप C2 एक्सिस के विद रिस्पेक्ट बोल रहे हो या सिग्मा प्लेन की विद रिस्पेक्ट बोल रहे हो? मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री बात कर रहा हूँ, एक्सिस नहीं सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम इस मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे ड्रा कर रहे हैं ना, ये वाला है ना, इज इट ओके? जो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो नहीं सर, वो प्लेन ऑफ पेपर कोई भी बोल रहा है, प्लेन ऑफ पेपर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो लोब का आधा हिस्सा इस पेपर के आगे और आधा हिस्सा पीछे, ऐसे। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो कहाँ किया, वो हमने जो ओके देन अगेन द सेम लॉजिक लाइज कि जब आप सिमेट्री देख रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल प्लेन आएगा ना, फिर तो आप बोलोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, ठीक है, तो उस केस में जो आपका प्लेनर रहेगा तो वो हमेशा ही उसमें मिरर प्लेन सिमेट्री आएगी, ठीक है। फिर तो चाहे कोई भी प्लेन मॉलिक्यूल ले लो आप, उसमें हमेशा ही रहेगा वो जो जो ये वाला प्लेन बोल रहे हो आप, ठीक है, दिस प्लेन ये ऊपर से ड्रॉ कर रहे हो आप सर, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट देख रहे हो, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं ये जो जो ये परपेंडिकुलर प्लेन आ रहा है, हम इसके विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं। इवन देन तब तो फिर हमारा इसमें तो सारे के सारे सिमेट्री है। अगर हम इस प्लेन की सिमेट्री से देखते हैं देन वी कैन नॉट कंपेयर इट, तब हमारे पास कोई भी नॉन सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक नहीं है। सर ये सिर्फ इथिन में होगा, क्यों 1,3-ब्यूटाडाइन एंड हेक्सेन ट्राइएन इस सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि देयर इज सम डायहेड्रल एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स इन दैट केस। नहीं अगेन से यू कैन कंसीडर इट ओनली इन इथिन मॉलिक्यूल। 1,3-ब्यूटाडाइन ऐसे प्लेन पॉसिबल नहीं है। नहीं, ब्यूटेडाइन के केस में you are having this sp2 hybridized, all the 4 carbon atom are sp2 hybridized, so these are all lying in the same plane, इनके बीच में डायहेड्रल एंगल नहीं आएगा, ये सारे का सारा सिस्टम है वो सेम प्लेन में, ये सारा सेम प्लेन की बात कर रहा हूँ। जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू भी आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसा प्लेन नहीं आएगा, वो 1,3-ब्यूटाडाइन में जैसा आएगा, आप 1,3-ब्यूटाडाइन में ऐसा प्लेन नहीं पास कर सकते हैं, ओनली इथिन मॉलिक्यूल में पॉसिबल है आई थिंक। इथीन में दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो इथीन में ओके, तो वो इवन ब्यूटेडाइन में आई डोंट नो संकल व्हाट यू आर सेइंग, बट ब्यूटेडाइन में व्हेन यू आर हैविंग ऑल द एटम्स दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, उसमें डायहेड्रल एंगल कैसे आएगा बताइए मुझे? When all the carbon, all the hydrogen, they are in the same plane. Sir, please listen to. Sir, डायहेड्रल अब वो जो सारे ऑर्बिटल है ना, वो एक प्लेन में नहीं है, मतलब उनके बीच में सम एंगल है, तो आप दो एटम को सिर्फ मतलब दो ऑर्बिटल को एक प्लेन में रखकर सिर्फ बाइसेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो आप सिमिलर प्लेन कैसे डालेंगे? यू मीन जो sp2 जो ठीक है, जो x और px और py आएगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, यू मीन आपका वो मतलब है, तो वो चीज आप यहाँ पे क्यों नहीं मान रहे हो? फिर अगर px और py आएगा फिर देन व्हाई नॉट इन दिस केस जो इथीन है, व्हाई नॉट इन केस ऑफ इथीन? ये तो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में आएंगे, जो px है और py है, so these will also be in the perpendicular planes. Difficult maybe, I'm not able to get your questions, or you are not that clear to me what you really want to say, but if you are saying that it is even in case of butadiene, if we are why we are not taking this, then again then we will not be having that differentiations, because that differentiation does matter कि जब आपको जब कंपैरिजन कर रहे हैं आप एक ऐसी सिमेट्री के साथ, दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले बोला कि जो C2 एक्सिस लेंगे हम, तो C2 एक्सिस इट शुड ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर C2 एक्सिस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ओनली वी कैन हैव दोस डिफरेंशिएशन, आपके रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट की सिमेट्रीज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। So then you can get the whatever desired results you want to get, ठीक है, कि आप 90 डिग्री से देखना है आपने इसको या 180 डिग्री से देखना है, only then you can view those results.
अगर आप सेम प्लेन में, अगर इनमें सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, देन व्हेन यू आर अप्लाई द कोरिलेशन डायग्राम बनानी है आपने, ठीक है, तो उसमें जस्ट टू मेंटेन व्हाट यू कैन से टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, अगर आप एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना है कि ऐसा नहीं कि आप में से कुछ स्टूडेंट लो सर C2 एक्सिस हमने तो इन द प्लेन ऑफ पेपर ले लिया, वो भी तो C2 एक्सिस है, दूसरे बोलेंगे हमने परपेंडिकुलर प्लेन लिया, तो इस एक केस में रिजल्ट अलग आएगा, दूसरे केस में अलग आएगा, क्योंकि व्हेन यू आर टेकिंग इट इन द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में ले इसको घुमाओगे तब तो ये C2 एक्सिस दिखाएगा, तब ये C2 सिमेट्री दिखाएगा, ये इस केस में C2 सिमेट्री होगा, ठीक है, देन the results will not match. So what we are doing it, we are doing it a conditional, जो हम स्टडी कर रहे हैं, we are doing a conditional study. So let us say it that the C2 axis will be perpendicular C2 axis, and again the plane of symmetry will be the perpendicular plane of axis, जो perpendicular plane होगा which will bisect the molecule, उसको पूरा bisect करेगा. So we will only view it through that, ठीक है. तीसरा ये होगा कि ये तो अभी हम सिर्फ सिमेट्री एलिमेंट्स को ये चाहे रिएक्टेंट्स का ले लो, अभी पी ऑर्बिटल्स का ले लो, लेकिन जब हम रिएक्शन करेंगे एग्जैक्टली, जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की सिमेट्री मैच करवाएंगे, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज अगेन ब्यूटाडाइन को डिस्कस करते हैं. सो ब्यूटाडाइन के केस में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इन दिस केस ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी प्लेन्स में है. इस केस में ओनली दिस 2 आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. तो इस केस में जब हम इसकी सिमेट्री मैच करेंगे, सिग्मा और C2 सिमेट्री देखेंगे इसकी, ठीक है, सो दैट विल नॉट, ऑल द एटम्स दे विल नॉट बी लाइंग इन द सेम प्लेन. आपके पास कोई ऐसा एंगल मिलेगा नहीं जब उसको बिल्कुल सिमेट्रिकली इसको डाइसेक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो इन दैट केस यू विल सी, हम आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड्स की भी सिमेट्री देखेंगे, इसमें वेदर सिग्मा बॉन्ड की जो सिमेट्री आ रही है कि वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स psi1, वो कंपेयर करेंगे दोनों का, उसका psi1 और इसका जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आएगा वो कंपेयर करेंगे हम लोग. सो whether it is having a C2 symmetry or mineral print symmetry, so that then those we will describe, ये आएगा डिटेल में. Does it make sense? Yeah, आपको I don't know, I am able to satisfy your query or not. If not, you can again explain it little bit more, I may be able to understand it. What exactly you want to say? Sankalan. Yes sir, I am unable to make you understand. नहीं, मुझे सुना नहीं, क्या बोल रहे हो? Sir, actually I am unable to make you understand. But okay, maybe if you can draw some pictures and send me a WhatsApp message. So what exactly you mean to say? Maybe so like आप पेपर पे ड्रॉ करके उसका WhatsApp करके you can send it to me, ठीक है. Maybe मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है. ये तो मैं जो समझ पाया हूँ मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, but what is your exact question? So that doesn't matter. But again for rest of the students I am saying this is really again very interesting topic है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, और इसमें you will get definitely 3 or 4 questions in your net examinations, ठीक है. तो जो आपके डाउट्स हैं उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं आपस में डिस्कस करके, ठीक है. बट अगेन देन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये जो बेसिक्स हैं, दीज आर द बेसिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, कि आप जो लोब्स है वो कैसे घूम रहे हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कैसे C2 सिमेट्री आएगी, कैसे मिनरल प्रिंट सिमेट्री आएगी, रिएक्टेंट्स के सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या होगा, ठीक है, जब ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इसमें से क्या psi2 बॉन्डिंग है, psi3 एंटी बॉन्डिंग है, या psi3 एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है. तो अगर आपको ये समझ आ गया तो उस केस में देन इट विल बी very easy for you people to take care of any type of questions. किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है वो आपको समझ आएगा, then you will be able to solve those questions, ठीक है. तो अगर नहीं पता चल रहा है, मे बी हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल भी पूछिएगा तो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा क्लास का, क्योंकि मे बी एज आई टोल्ड यू कि मैं
अभी घर पे हूँ, एक दो कुछ असाइनमेंट्स बीच में आ जाती हैं, तो सॉरी फॉर दैट कि आपको कभी कभी क्लास टाइम की नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू take your classes, all your classes as far as possible for me. और इसका आप एक थोड़ी सी इंटरेक्शन रखिए, थोड़ा सा साथ में